So what does a quadratic equation mean? First thing, it's an equation, meaning it would have an equal to sign in it. Second thing, it's quadratic. Now whenever there are different kind of polynomials that we have studied in our 9th standard, they were linear polynomials, quadratic polynomials, cubic polynomials. Here we are going to concentrate only on quadratic polynomials or quadratic equations. Hey learners, hope you are doing well. Today we are going to jump into a very interesting topic called quadratic equations. This topic has been taught in class 9th for ICSE. It has been introduced in class 9th for CBSE and a state board. In 10th standard, we are going to focus on this topic a lot. For ICSE, there are 2 chapters associated with this particular topic. First is the quadratic equation and second is solving the quadratic equation. So let us see what these quadratic equations are and how we can solve them. So what does a quadratic equation mean? First thing, it's an equation, meaning it would have an equal to sign in it. Second thing, it's quadratic. Now whenever there are different kind of polynomials that we have studied in our 9th standard, they were linear polynomials, quadratic polynomials, cubic polynomials. Here we are going to concentrate only on quadratic polynomials or quadratic equations. What's the difference between a quadratic polynomial and a quadratic equation? A quadratic equation would always be equated to 0. A quadratic polynomial, however, would not be equated to 0. So let us see how it works. So if I have px is equal to x square plus 2x plus 1, then this would be a quadratic polynomial. On the other hand, if I have x square plus 2x plus 1 is equal to 0, this would be quadratic equation. So this is what we are going to focus on today and try to solve it. Now what is necessary for equation to be quadratic equation? First thing, it needs to have a square term. That means the coefficient of the x square term, that is the variable का square जो है वो term का coefficient can never be equal to 0. It can be plus, it can be minus, we don't have to worry about it. First thing. Second thing, it cannot have any power of variable other than 2, 1 or 0. So root x नहीं हो सकता है, cube root of x नहीं हो सकता है. If there is an equation जिसमें x square तो है पर उसके साथ साथ root of x भी है, then it won't be considered as a quadratic equation. अभी एक quadratic equation के अलग अलग नाम सुन लेते हैं अगर क्या हो सकता है. Okay? But before that, let us write it in a standard form. अभी ये standard form क्या होता है? तो any equation or any polynomial or any equation for that matter can always be written in its standard form. Standard form क्या है? जिसमें variables है और coefficients की जगह पे a, b, c, d ऐसे और letters होंगे. So we can always write it as ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the standard form of a quadratic equation. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा कांस्टेंट टर्म है वो ये वाली साइड में नहीं है. द अदर साइड इज ऑलवेज इक्वल टू 0. तो ऐसे ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी फॉर इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक व्हाट इज क्रूशियल? ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0. ए 0 हो जाएगा, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा. लीनियर इक्वेशन अपन स्टडी नहीं कर रहे, अपन स्टडी कर रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो पहली चीज है A is not 0. क्या B 0 हो सकता है? हाँ, हो सकता है. क्या C 0 हो सकता है? हाँ, हो सकता है. तो अगर मेरा इक्वेशन है ax square plus bx is equal to 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. और अगर मेरा इक्वेशन है ax square plus c is equal to 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा. अगर ये सिनेरियो है तो इसको बोलेंगे एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर मेरा c का वैल्यू 0 है
और अगर मेरा x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज b का वैल्यू 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्यों? क्योंकि अपन इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर ऐसा रहेगा तो एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ऐसा रहेगा तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके जो दोनों वैल्यूज होंगे वो इक्वल होंगे, उनका साइन अलग होगा। प्योर में एग्जैक्टली सेम वैल्यूज पर उनका साइन अलग होगा। सो इट वुड बी लाइक +-2, +-3, +-4। ये इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं ऐसे काइंड के। और इस वाले में x का एक वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। Why? Because we can take x common and it would be equal to 0. लेटर पार्ट में अपन देखेंगे कि वो 0 कैसे होगा। तो अब आगे चलते हैं और देखेंगे कि what is happening in quadratic equations. अभी एक एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे जैसे अपन ने पहले मैंने बोला था कि इफ वी आर सॉल्विंग एन एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक सोल्यूशन जो है वो 0 रहेगा। So before we go ahead, let's have a small recap about ये solution क्या होता है। तो solution of a quadratic equation is the value of x which is going to make this equation equal to 0। तो ध्यान में रखना है कि वो x की वो वैल्यू है जो उसको 0 बना देगी। ओके, दैट इज इट वुड मेक द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं अपन? सो कॉमन क्या है दोनों में? x कॉमन है, सो आई कैन राइट 4x + 5 is equal to 0. If I multiply two numbers and their value is equal to 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उनमें से एक 100% 0 है। So therefore x is equal to 0 और 4x + 5 is equal to 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4x is equal to -5 और x is equal to -5/4। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि एडफेक्टेड में एक x का वैल्यू 0 रहेगा और दूसरे का वैल्यू जो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं वो रहेगा। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब ये आगे देखेंगे कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो क्या होगा। अब ये एक इक्वेशन है, x² - 4 = 0, इधर b का वैल्यू 0 है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0। तो क्या होगा इसके साथ? तो x² वुड बी इक्वल टू 4 और x वुड बी इक्वल टू √4। √4 वुड बी +-2। मतलब क्या हुआ? या तो x +2 होगा या तो x -2 होगा। इन बोथ दीज केसेस द इक्वेशन वुड होल्ड ट्रू। तो फॉर अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट का वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस उनका साइन होगा वो अलग होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। नाउ let us go ahead and talk about a new topic after this. The topic is discriminant of a quadratic equation. थोड़ा अजीब नाम है discriminant, पर ये discriminant होता क्या है? If I have ax² plus bx plus c is equal to 0 as my quadratic equation, then the discriminant del is given by, अब ये जो है ये del है, इसको del बोलते हैं, discriminant बोलते हैं, डेल्टा भी बोलते हैं। ये ग्रीक लेटर है, कैपिटल डेल्टा ऐसा लिखा जाता है ग्रीक लेटर में, ग्रीक स्क्रिप्ट में। तो इधर अपने पास आ जाएगा डेल इज इक्वल टू b² - 4ac। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि डेल इज गोइंग टू बी इक्वल टू b² - 4ac। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये बाद में अपने को बहुत ज्यादा यूज होगा। इसको यूज करेंगे अपन टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच सेज टू एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स। मतलब क्या, ये जो x के वैल्यूज आएंगे इसके, उनका नेचर क्या रहेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है कि ये नेचर क्या होता है। तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो एग्जिस्ट कर रहे या फिर नहीं कर रहे। ओके, और दूसरी चीज हो सकती है अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो कैसे है, मतलब रियल है, इक्वल है, रैशनल है, इरैशनल है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस स्मॉल थिंग। तो कैसे पता करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर क्या होगा। तीन चीजें हैं। फर्स्ट थिंग इज, अभी
तीन ही चीजें हो सकती है व्हेन वी टॉक अबाउट डेल, कि इधर फर्स्ट इज del is equal to b square minus 4ac which is greater than 0, that is del का वैल्यू इज पॉजिटिव। अगर del का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रूट्स मेरे जो है वो रियल होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो दो चीजें, रियल भी है और अनइक्वल भी है। कब? व्हेन मेरा डेल का वैल्यू इज पॉजिटिव। ओके, रैशनल होंगे, इरैशनल होंगे, इट वुड डिपेंड, पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दे आर गोइंग टू बी रियल एंड अनइक्वल। अपन पिछले इसमें देखा था कि रूट इक्वल भी हो सकते हैं, उनका साइन अलग हो जाएगा। ओके, पर ये केस में रियल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। अभी दूसरी केस क्या हो सकती है? डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो रूट शुड बी इक्वल। यहां पर रियल थे और अनइक्वल थे, इसमें हो जाएंगे रियल और इक्वल। सो विल गेट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली सेम वैल्यू होगी दोनों भी केस में। तो ये कब हो जाएगा? व्हेन इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो उसको दो नहीं एक ही रूट आता है। ओके, और फिर तीसरी चीज क्या हो सकती है? डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज लेस देन 0। अगर ये डेल 0 होगा तो क्या होगा? The roots are going to be imaginary or no real roots would exist। जैसे CBSE और स्टेट बोर्ड को सिखाया जाता है कि भाई रियल रूट्स नहीं होंगे, इसके इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं। ओके, तो विल से रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, इक्वल होंगे नहीं होंगे दैट इज अनदर थिंग, इट्स आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस बुक, so we are not going to discuss it right now. We would certainly be discussing it under the topic complex numbers in near future. पर मोटा मोटा ये चीज है कि अगर डेल पॉजिटिव है तो इक्वल रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे, इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, और लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव है तो रियल रूट्स नहीं आएंगे या फिर इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो इधर क्या करेंगे? तो वी हैव टू फिगर आउट वेदर द रूट्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। ओके, और एक चीज बोलना भूल गया मैं, डेल अगर नेगेटिव होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके रियल रूट्स नहीं आएंगे, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन सॉल्व नहीं कर सकते विथ रेफरेंस टू 10th। 11th में वो सॉल्व हो जाता है बिकॉज वहां पर वो इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट सिखाया जाता है, पर 10th के लिए वो सॉल्वेबल नहीं है। सो यू कैन जस्ट से दैट सिंस द डेल इज नेगेटिव वी कैन नॉट फाइंड रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन एंड यूड बी गेटिंग ऑल द मार्क्स। तो कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, आई ऑलवेज एडवाइस माई स्टूडेंट्स टू सी द नेचर, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि दे वांट यू टू सॉल्व इट बाय द फॉर्मूला मेथड, और फिर वो आपको देते हैं ऐसा वाला एक सम, और बच्चे दे कीप ऑन सॉल्विंग इट विद ईदर फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और एनी अदर मेथड दैट इज देयर, एंड उससे होता ये है कि आंसर नहीं आता है, किड्स आर स्टक। अगर यही चीज़ एग्जाम में होगी तो प्रॉब्लम होंगे, बिकॉज एग्जाम में टाइम इज प्रेशियस। ICSE के लिए 2.5 hours मिल रहे हैं, CBSE के लिए 3 hours मिल रहे हैं। दैट इज द ओनली टाइम स्पैन दैट यू आर गोइंग टू गेट टू सॉल्व। उसमें से अगर 4 मिनट या 5 मिनट वेस्ट हो जाए जस्ट टू चेक आउट कि उसका आंसर नहीं आ रहा, इट वुड हैम्पर योर परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली, बिकॉज कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है फिर उसके बाद कि ये इतना सिंपल सा सम है जो मेरे को नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज, वी आर व्हेनेवर यू गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू बी सॉल्व्ड, फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू चेक इज उसके रूट्स आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे।
अगर इमेजिनरी रूट से तो आएंगे ही नहीं तो उधर ही छोड़ देंगे अपन उसको। तो इसका पहले वाले का देखते हैं, इसमें a क्या है, इट इज a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 7। अगेन अ वेरी क्रूशियल थिंग, मेनी पीपल मेक अ मिस्टेक विद इट। ये -6 है इसलिए -6 ही आएगा, इसको +6 नहीं कर सकता मैं, बिकॉज व्हेन आई कंपेयर इट विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये दोनों प्लस है, ये बहुत क्रूशियल है। तो अगर आपके इक्वेशन में इसका वैल्यू नेगेटिव है तो b का वैल्यू भी नेगेटिव ही लेना चाहिए या लेना पड़ेगा रादर। तो b² करेंगे, b² - 4ac निकाला मैंने, तो वो आ जाएगा -6² -4 × 5 × 7, so that gives me 36 minus, अभी ये हो गया 4 5 20, 27 140, तो इसका आ जाएगा -104। तो मेरा जो डेल है दैट इज लेस देन 0, विच मीन्स नो रियल रूट्स, खत्म, वी स्टॉप देयर। सो वी राइट दिस इक्वेशन has no real roots and that's where we stop, all sorted। okay, तो कभी भी अगर ऐसा एग्जाम्पल आ जाए पहले ये चीज कर लो, अगर है पॉजिटिव तो ही आगे जाना। You can do it on the rough page as well if you don't have to, if you don't want to use it, if you're not comfortable with using the formula, you can just go on the rough page and check out कि ये पॉजिटिव है भी या नहीं। अभी दूसरे वाले को चेक करते हैं उसका क्या होगा। तो पहला वाला तो रियल रूट है नहीं इसके। अब ये जो दूसरा वाला है इसमें क्या हो रहा है, तो इट इज a है 1, b है 6, c है 9, सो आई गेट b² - 4ac is equal to 6² - 4 × 1 × 9, so that is 36 - 36, so that is 0। मतलब मेरा डेल क्या है, मेरा डेल है 0। इसका मतलब क्या होगा कि I will be getting equal roots, so the roots are going to be real and equal। तो रियल भी है और इक्वल भी है, क्यों, बिकॉज मेरा डेल इज इक्वल टू 0। अभी तीसरे वाला का चेक करते हैं इसके साथ क्या हो रहा है। Now comfortably they've done a very nice trick, सारों में x का कोएफिशिएंट है वो 6 है, मेरे b का वैल्यू जो है वो 6 है, तो इधर आएगा 6² - 4 × 2 × 3, so that's equal to 36 - 8 3s are 24, so that's equal to 12। ओके, तो ये हो जाएगा। तो इसमें मेरा डेल क्या है, मेरा डेल है पॉजिटिव, सो माई डेल इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या होगा, आई वुड गेट रूट्स, द रूट्स आर गोइंग टू बी रियल एंड द रूट्स आर गोइंग टू बी अनइक्वल, सो आई विल से द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यस, रूट्स रियल भी है और अनइक्वल भी है। अगेन अ वेरी क्रूशियल थिंग, या सो you can quickly make a note of this. So this was about figuring out whether the roots are real or not, that is the nature of the roots, whether they are real or imaginary. Now let us go ahead with solving a quadratic equation. The first method to solve quadratic equations is by factorization. अभी अपन 10वीं में आ गए, so we've grown up, so we'd be using complicated terms for the simple terms that we had used in the past. This thing was already taught to you in your last year under the topic splitting the middle term. तो पिछले साल उसको splitting the middle term बोल रहे थे अपन बहुत confidently, उसी चीज को अभी अपन बोलेंगे factorization, because factorization is the proper term
proper mathematical term for splitting the middle term. Okay, so let's quickly see how this factorization works. तो अपन यही वाले एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं. Don't want to waste time on writing new examples and then solving them. अपन को पता पहले वाले के तो रूट्स आ नहीं रहे, तो we'll just check it out. दूसरा और तीसरा we can solve it, okay, by splitting the middle term or factorization. तो ये क्या है मेरा x square plus 6x plus 9 is equal to 0. Splitting the middle term is the literal meaning. मिडिल टर्म क्या है मेरा, ये मेरा मिडिल टर्म है, तो मैं क्या करूंगा, ये मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट करूंगा, मीनिंग आई विल पुट इट इनटू 2 पार्ट्स, ओके, सच दैट उसका एडिशन जो है वो 6 होना चाहिए. तो इधर अपन कर लेते हैं, एडिशन कितना होना चाहिए, 6, और मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 9. तो जो मिडिल टर्म है वो एडिशन होना चाहिए, जो थर्ड टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए. अभी इधर थर्ड टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, बिकॉज मेरा फर्स्ट टर्म ए जो है वो 1 है. अगर ए 1 नहीं होगा तो कैसे करेंगे, ये अपन आगे वाले इसमें देखेंगे. तो लेट्स स्प्लिट 6. तो वी कैन इजीली पुट इट इनटू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, we get x plus 3 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, we get x plus 3, गिविंग मी x plus 3 multiplied by x plus 3 is equal to 0. Now x plus 3 multiplied by x plus 3 would be, now I can separate them out and write x plus 3 is equal to 0 or x plus 3 is equal to 0, or I can straight away write x plus 3 square is equal to 0. By taking square roots on both the sides, I'll get x plus 3 is equal to 0, because root of 0 is also 0. So therefore I can say that therefore x is equal to minus 3, and that would be my answer. Now let us go ahead and check out the next one. इसमें कैसे करेंगे, अभी ये देखो अपन ने दूसरा चीज भी प्रूव हो गया, अपन ने जो पिछले इसमें किया था, सिंस डेल का वैल्यू 0 है तो क्या हो रहा है, सिंस डेल का वैल्यू 0 है तो उसके जो रूट्स होंगे दे आर गोइंग टू बी रियल एंड इक्वल. तो इधर एक ही रूट आ गया अपने को इफेक्टिवली. अब ये तीसरा वाला कर लेंगे, इसके साथ क्या होता है वो देखेंगे. सो वी हैव 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अभी इधर भी मिडिल टर्म मेरा 6 ही है, तो एडिशन कितना होना चाहिए, एडिशन शुड बी इक्वल टू 6, और मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, सो इट शुड बी, इस 3 को ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2s are 6 होना चाहिए. ये बहुत क्रूशियल है. पिछले इसमें यहां पर 1 था इसलिए 1 9s are 9 लिखा था अपन ने, इधर 2 है और इधर 3 है, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन जो है, जो ये एडिशन जिनका 6 होना चाहिए, वो जो दो नंबर आएंगे उनका मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. सो दैट शुड बी अगेन 2 3s are 6. So apparently it would be very difficult to solve this particular sum using factorization method. This sum can be solved with the formula method. So we'll be seeing it when we solve the formula method. So let us quickly change this sum with another sum and solve it. So I have changed the sum to 2x square minus 7x is equal to 39. I have made sure that we are having a similar sum that can be solved. So it would also have two different values of the root. So इसको कैसे solve करेंगे, तो we'll write 2x square minus 7x minus 39 is equal to 0. पहले ये 39 को इधर लेना पड़ेगा, then only we can solve it. अब इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, तो 39 मल्टीप्लाइड बाई 2, ओके, तो और एडिशन कितना होना चाहिए, -7. सो एडिशन इज इक्वल टू -7 एंड मल्टीप्लिकेशन should be 78, -78, बिकॉज इधर भी -39 ही है. तो दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन -78 आ रहा है और एडिशन
-7 आ रहा है। इसका डायरेक्ट मतलब ये हो गया कि ये जो 7x है ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, उसका एक पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, एक पार्ट नेगेटिव होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तभी मेरा फाइनल मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा, नहीं तो मेरा दोनों नेगेटिव या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे तो मेरा फाइनल मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा, विच इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो यहां पर रिक्वायर्ड है -79। और दूसरी चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो एडिशन है वो -7 आ रहा है। इसका मतलब ये जो स्प्लिट होगा उसमें का जो बड़ा नंबर है दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, और जो छोटा नंबर है दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो मैंने दो चीजें कंक्लूड की है जस्ट बाय लुकिंग एट इट एंड लुकिंग एट दीज वैल्यूज। पहली चीज क्या है कि मेरे जो फैक्टर्स होंगे उसमें से एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, और दूसरी चीज नेगेटिव वाला फैक्टर बड़ा होगा। व्हाई? बिकॉज मेरा जो एडिशन है वो नेगेटिव आना चाहिए। सो टू फाइंड द फैक्टर्स वी वुड फर्स्ट फैक्टराइज 78। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 78, 2 मल्टीप्लाइड बाय 39, 3 मल्टीप्लाइड बाय 26 और 6 मल्टीप्लाइड बाय, अभी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा 78 को, 5 से नहीं हो रहा, तो इसलिए 4 5 को नहीं किया है, 6 को किया है। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज 78। अगर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 7 आ जाएगा। तो मेरा डिफरेंस 7 आ रहा है, मेरा मल्टीप्लिकेशन 78 आ रहा है। अभी साइन का थोड़ा सा इश्यू होएगा। तो साइन कैसे लिखेंगे अपन? विल राइट 2x² माइनस 13x प्लस 6x माइनस 39 इज इक्वल टू 0। ये एक वेरी स्पेसिफिकली लिखा गया है क्योंकि बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है, छोटा वाला नंबर पॉजिटिव है। एडिशन करेंगे तो आंसर -7 आएगा, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर -78 आएगा। दोनों में कॉमन क्या है? तो 2x माइनस 13, सो आई हैव 2x माइनस 13 साइड में लिखा, और ये वाले पार्ट में रह गया x प्लस ये वाले पार्ट में रह गया 3, सो इट्स इक्वल टू 0। तो अभी दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0, सो आई कैन से दैट देयरफॉर 2x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 13 इज इक्वल x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, गिविंग मी 2x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 13/2 and -3. So these are the two values of x that we are going to get. So we had a similar sum जिसमें discriminant जो था वो greater than 0 था और positive था, और उसको अपन ने जब solve किया तो we got two real answers which are not equal. You can quickly make a note of this. So learners, this was all about the nature of roots of a quadratic equation and solving quadratic equations using factorization. If you found this video interesting, please like it, share it with your friends and subscribe to this channel. This was Dr. Rishi from the Learners Academy. Thank you.